मैं सबको ये कहता हूँ कि हाँ मैंने रिट की थी इसके ऊपर कि इसको मैंडेट करें, because I mean the only person it helps is literally you and no one else. अच्छा, आज स्मॉग का वो क्या है? Like today, what's the Rana? It's 468. It was 468 a little while ago. In the morning around 8:30, I believe it was 998. That's the average of Lahore of all the meters, the 15 that are integrated with the IQ air system. And we are right now the worst in the world, right? Oh, by a margin. By some margin. We किसी चीज में तो फर्स्ट आए हैं, consistently आते हैं। हमारी डोमिनेंस इतनी है कि हमारे साथ कोई compete भी नहीं करना चाहता। इस लेवल की डोमिनेंस है इस वक्त हमारी। सारे चाहते हैं कि इसमें हम पाकिस्तान ही नंबर 1 रहे। ओलंपिक्स छोड़ो, वर्ल्ड कप छोड़ो, हम स्मोक वर्ल्ड कप में फर्स्ट है पूरी दुनिया में। वो तो 50 मुल्क compete कर रहे होते हैं ना उसके लिए, तो हमने अपनी मार्केट अलग से बनाई। लास्ट अपना थ्रो कितने का था उसका? वो था याद नहीं, 90 समथिंग था। Yeah, 97 yeah 97 point something। वो गाड़ी भी मिली थी नंबर प्लेट। तो वो मुझे लगता है जितना हम कॉम्पीट कर रहे हैं कि जितना अरशद नदीम ने किया उस पे हम आगे जीरोस लगा के अपना जो है हम अपना नेजा का रिकॉर्ड बना रहे हैं फॉर श्योर। अच्छा, ये फहद, यू वर मेंशनिंग दैट ये गाड़ियां जो अभी कोई इंपोर्ट की हैं गवर्नमेंट ने, एसयूवीज वगैरह और सारा कुछ इंपोर्ट नहीं, परचेज EPA की इन्फोर्समेंट डिवीजन के लिए I believe they've purchased 30 SUVs and I think a total of 200 vehicles have been purchased, including bikes and relatively smaller cars. क्या पर्पस होगा? So one of the things that the government of Punjab is trying to do, is ostensibly wanting to do, is to start a vehicle evaluation mechanism where they can see, where they check the emissions out of the exhaust of vehicles at random, and if they do not meet the vehicle emission standards that are applicable in Punjab, then the cars will be challaned in the first instance and then potentially impounded. So these vehicles are the vehicles that the EPA has purchased have to be assigned on monitoring and enforcement mechanisms. So EPA के officers ने कहीं जाना है, पिकेटिंग करनी है, किसी इंडस्ट्री को विजिट करना है to see whether their emissions are in conformity or not. तो enforcement purposes के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। वे ऑप्टिकली 4 को इलेक्ट्रिक ही उसमें से खरीद लेते हैं। हाँ, मतलब we are already spending so much money. Because you guys are mentioning these cars are gonna be highly pollutive, no? Yeah, because the problem is, talk to anyone from the EPA. I was having this conversation with someone from the urban unit, and their sort of take on it was that since most of these big cars that are being sold in Pakistan have modern engines, they're actually better than their emissions are actually better than the emissions from a bike or a 2-stroke rickshaw or a Jingchi or a bus even. Which when I asked them if they have any data to back it, they said, EPA did spot testing at certain elite schools around Lahore and around public schools and found the air quality around public schools to be worse. Interestingly enough, when I asked them to share the data, they said, no, ये तो हमने बस एक मीटिंग में डिस्कस किया था data. And I was like, well, if your data isn't public and no one is allowed to check the mechanisms through which you gathered it, then it really doesn't serve any purpose. And in any event, I, for one, until scientifically proven wrong, refuse to believe that a Fortuner that is doing 6 kilometers per liter is going to be less polluting than a bike which is doing 40 to 50 kilometers per liter, just by the sheer number of your travel distances. Having said that, fact of the matter is that even some of the new cars being sold in Pakistan right now are being sold with engines which are not permitted in more developed economies, at least with reference to emissions regulations. So for example, I don't know whether it's appropriate to name, but
some of these Korean manufacturers who've recently entered the fray, the engines that they're offering in their cars have been outlawed in EU since 2011 because they don't meet their emission regulations. Just by way of example, Euro 5 standards कहते हैं कि your car cannot emit more than 0.005 PM2.5 particles in the total breakup of the emissions. We allow, I believe, up to 0.5. So वो 0 और अब एक और 0 ऐड करना चाह रहे हैं, हम अभी 0.5 पे बैठे हैं. So our emission standards are not, up to any developed nation standards, and that's how. I mean, there's a reason why developed nations have emission standards which are so strict, because they have already been through what we are going through now, realized where the problem lies, and tackled it directly. 2 crore people, at least just talking about Lahore and its adjoining areas, 2 crore people are losing up to 7.5 years of their life as a consequence of this. We don't want to tackle that. We want to say कि नहीं, आप कार इंडस्ट्री के बारे में बात ना करें, jobs are at stake. ये economic development की निशानी होती है. When you talk about introducing more bus lanes and cycle lanes and stuff like that, the response that you get is, oh, but having more vehicles on the road is a sign of prosperity. Yes, it may be a sign of prosperity, though I believe the common phrase that a rich country is, or a rich city is one where the rich use public transport, not where the poor have access to private vehicles. ये लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है. हम कह रहे हैं कि देखें, ग्रोइंग इकोनॉमी हम बनाना चाह रहे हैं. ग्रोइंग इकोनॉमी में तो गाड़ियां और लोग खरीदेंगे. मैं क्यों खरीदेंगे? अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिव हो तो मैं क्यों गाड़ी खरीदूं? या अगर मैं गाड़ी खरीदता भी हूँ कि जी मुझे कुछ लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस चाहिए कि मैं अपनी ट्रैवल खुद कर सकूँ, मे बी आई वॉन्ट इट एज अ वीकेंड थिंग. एक ज़माने में घोड़े के बगैर मोबिलिटी इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी. आज कौन घोड़ा मोबिलिटी के लिए यूज़ करता है? In large urban centers at the very least. You use your cars today. How did Paris deal with it? Certain days cars aren't around on the road. ठीक है, स्मॉग का इशू था ना उनका भी. उन्होंने तो नहीं कहा कि हम साए से आ रहे हैं या कुछ आ रहा है. They were like, okay, let's find out where the problem is. How do you do that? You do, and this I've been saying now for 9 years, and I can't believe this is something that hasn't happened. You do something called a source apportionment study that actually tells you what the source of your pollution is, and any policy that you then design is based on that source apportionment study and directly targeting the source of that pollution. चलो वो नहीं भी हम करते. Urban Unit, which is a wholly owned company of the government of Punjab, did a study for the emissions in Punjab and something called the emissions inventory of Lahore. That particular study ended up concluding that around 83.14% of all emissions are from the transport sector. Now transport sector के अंदर बाइक भी आ जाएगी, transport sector के अंदर बस भी आ जाएगी, transport sector के अंदर एक SUV भी आ जाएगी, और उसके अंदर एक ट्रक भी आ जाएगा. Now, within that bracket, it's actually not that difficult to identify किसकी contribution क्या है, because based on what sort of engine you have in your vehicle, the emissions would correspond to it. So, for example, a diesel vehicle would in all likelihood have a larger sulfur, for example, footprint. So अगर आपको पता लगता है कि भाई फलाना एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो यू कैन रीजनेबली कंक्लूड कि भाई ये एक SUV या मोटर कार से आ रही है, या एक बस से आ रही है, या एक बाइक के इंजन से emissions आ रही हैं. ठीक है, so you do that breakdown and you find out who exactly I have to target to curtail this 83.14% that the Urban Unit study says comes from transport. We haven't done that, but for example, what we've done in something called the Green Lockdown is to ban buses, chinchis and bikes from certain roads. Why? How did we come to the conclusion that these were the problem areas? How did we? Yeah, I'm curious. We did. Or it was just... It was just random. Basically,
क्लास का जो ताल्लुक है कि आप किस ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज कर रहे That's how we got हैं, here. दैट इज आल्सो समथिंग। एसयूवीज वगैरह और गाड़ियों पे इसलिए बैन नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक खास तबका यूज कर रहा है। और उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आएंगी तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी वो जो है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमेशा पॉलिसीज़ हमेशा वल्नरेबल क्लासेस के लिए बनाई जाती है, उन पे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है और जितनी मराहत होती है वो एक ख़ास तबके को दी जाती है ताकि वो उससे और चेरिश करें और अपने बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम्स बनाए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए और ग्रीनरीज को कट करके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, आई स्वेयर देयर वो करें। जब अब नहीं, रूडा बहुत जरूरी है। अगर रूडा ना ना हुआ होता तो ये तो फिर मुल्क क्या नहीं चल होगा? सकेगा। लोगों के पिछले घर नहीं पीएम साहब बनते। कहते थे कि सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी इसलिए है। अभी वाले कहते हैं कि भाई ये लाहौर को बचाने के लिए ये जरूरी है कि लाहौर के साथ एक और राहौर पोल्यूशन बनाया जाए। सोर्स बना। और बनाया जाए। ये चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि हमारे सालों साल जो है पूरे लाहौर में स्मोक होता है पर ये स्मोक जो है जब विजिबिलिटी कम होने लग जाती है, जब हमारे अपने चेस्ट कंजेशंस होने लग जाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं हमारे आंखों से पानी आता है, तब हमें रियलाइज़ क्यों होता है कि ओ माय गॉड अब तो स्मोक स्टार्ट हो गया है। नवंबर दिसंबर में ये एक अवेकनिंग आती है पंजाब हुकूमत को, उसके बाद फिर बाकी के 10 महीने ये सोए होते हैं, ना इस पर कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, ना क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली जो है एड्रेस किया जाता है, ना इस चीज़ को एड्रेस किया जाता है कि हेल्थ की जितने भी क्राइसिस आते हैं वो कितने क्लाइमेट चेंज की वजह से इस चीज़ पे होता है। हर साल कॉप पे तो ये जाते हैं, पॉलिसीज भी जाते हैं, फंड्स भी लेकर आते हैं, पर वो जाता कहाँ है? ये एक प्रॉपर पिछले 2-3 साल से आई थिंक फहद मुझसे एग्री करेगा कि एक प्रॉपर माफिया बन गया है जो क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे फंड्स लेके एंड देन उसका कुछ नहीं होता और दरख्त लगाएंगे, 2-3 प्लांट्स करेंगे, एक बड़ी अच्छी फोटो सेशन करके उनको पिक्चर्स अपलोड कर दिया जाएगा, बट एक्चुअली में नथिंग इज हैपनिंग। My question is this: so I know you have been a political activist, and now you're also a climate activist. My question is, in terms of like getting things done as an activist, which has been more successful? I know the sad answer is probably both have been very difficult, but does the government actually pay any sort of heed to climate activists? They don't. अब you won't believe कि every year we used to do this climate marches. पहले साल जब हमने क्लाइमेट मार्च किया बहुत ज़्यादा लोग आए, दूसरे साल उससे कम लोग आए, तीसरे साल उससे कम लोग आए, और अब तो आपको पता है मुल्क के हालात, तो गैदरिंग तो हम कर नहीं सकते 20 से साल तो ज़्यादा। की नहीं क्लाइमेट इस साल तो मार्चेस भी नहीं हुए हैं और वो तो वैसे गैदरिंग के खिलाफ है। वो तो आपको पता है सर्टेन रीजंस हैं जिस पे ये लोग करने भी नहीं देंगे। तो अब जब भी कोई निकलेगा तो हमारी अब उन चीज़ों को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता क्योंकि हमारे मुल्क के और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको ये हाईलाइट करेंगे, उनको ये क्लाइमेट का मसला लगता नहीं है। लगता है 2 महीने सांस नहीं आएगी, कोई मसला नहीं है। इस टाइम हम लिटरली ऐसा एक प्रॉपर गैस चैम्बर में रह रहे हैं जिसमें हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा जो है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो रहे हैं, जो एग्रीवेटेड इश्यूज हैं वो जो पहले से जिनको थे वो एग्रीवेट हो गया है। और आप इस चीज़ को नोट करें कि जो कोविड में जिन पेशेंट्स ने कोविड से सफ़र किया है इन मंथ्स में उनके सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं, उनकी जो चीज़ें होती है वो वर्सन होती है। तो आप एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप आवाज़ उठाते हो और बट आपकी आवाज़ को उस तरह से सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। What I was reading, अब जो 1900 का भी एक फिगर आया था, राइट? ये फेज 8 वाली साइड पे 1580 I believe was the 1568 1568 yeah. सो आज सुबह मरातावली रोड जो आपके राइट साइड पे है सुगत, उधर 1686 का फिगर आया था एट 8:30 इन द मॉर्निंग। इवन पूरे चाइना में हम ये वाले साइकिल्स नहीं देखते, इवन जो उनके रिक्शाज है, जो टुक टुक्स हैं, जैसे हमारी चीज़ें वो भी इलेक्ट्रिक है। इन्होंने प्रॉपर वो स्कीम किया कि जिनके पास ये है आप ये दे के जाओ, ये लेके जाओ वाला सिस्टम नहीं होता। ये नहीं है कि आप एक जो तबका बेचारे जिनके पास सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही बाइक्स है, क्योंकि ये इजी है, एक्सेसिबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट उससे जो उसकी जो क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है वो ओब्वियसली है, बट सिर्फ आप एक ख़ास तबके को आप उस पर नहीं कर सकते। एक तो ये बेचारे
अब जैसे पिछले दिनों ड्रोन की व्यू आई थी कि ड्रोन इन आई फ्लेव माय ड्रोन इन लाहौर, तो वो उसमें 1100-1200 की वो अंदरून लाहौर की वीडियो थी। वो सारे एक खास तबके के लोग हैं, उनके पास ना एयर प्यूरिफायर खरीदने के पैसे हैं, ना उनके पास जो है कोई और सोर्स है। ज्यादातर उनमें से रेडी चलाने वाले, सब्जियां बेचने वाले, जिनके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। अब ये बेचारे इफेक्ट भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ब्रीदिंग पे भी नाउ देयर इज अ मनी अटैच्ड टू इट, यू हैव टू मतलब पैसे दो, प्यूरिफायर अच्छा लोगे तो अच्छा ब्रीथ करोगे। सांस के लिए भी आपको जो है, अब इन्होंने हवा भी इतना हमारा जहरीला हो गया। जब आपसे पहले कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि क्रॉप्स बर्निंग पे, कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एक नई स्टडी उन्होंने कंडक्ट किया था कि जो फार्मर्स थे इंडिया के, हम उनको एक खास इंसेंटिव देंगे और वो इंसेंटिव इनको एडवांस देंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में जो ट्रस्ट का इशू है वो काफ़ी हद तक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि फार्मर्स को लगता है गवर्नमेंट पैसे नहीं देंगे और हम अगर बर्निंग नहीं करेंगे तो जो है वो फिर हमें इंसेंटिव नहीं देंगे और फिर हमारा काम क्रॉप साइकिल इफेक्ट होगी। बिल्कुल तो कमाई करनी है ना अगली फसल लगा के। एग्जैक्टली तो वो उन्होंने वो सारा जो है उन्होंने कहा था कि जिन फार्मर्स को जिन एरियाज पे इंसेंटिव्स दिया गया था और एडवांस में इंसेंटिव्स दिया गया था, ताकि जिससे ये बायोसीड और सारी चीज़ें परचेज करके उसको रेगुलेट कर सके, उन एरियाज में कंपैरेटिवली जो स्मोक और जो क्रॉप की बर्निंग का साइकिल है वो काफ़ी डिक्रीज अच्छा। हुआ था। और जिन एरियाज में इन्होंने लोगों से नहीं किया है वहाँ पे इस तरह के इश्यूज आए हैं। अब दूसरा एक और मसला भी है जिसको डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए, जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे निशात हो गया, उसके अलावा पैकेजेस हो गया, उसके ये गुज्जू मत्ता साहब वाली साइड, सारे जितने भी फैक्ट्रीज हैं इनको बंद करने की कोई बात कह रहे नहीं हैं। कर रहा है। वहाँ गुज्जू मत्ता से खत्म कर रहे हैं, निशात को भी कह रहे हैं निकले और सारों को। आई डोंट नो हाउ फार दैट इज। तो फिर उसको बंद करेंगे तो फिर मजदूरों के लिए क्या अल्टरनेटिव? हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, आई थिंक बंद नहीं कर रहे, शिफ्ट कर रहे हैं उसे। बंद करना सोल्यूशन नहीं है ना उस शिफ्टिंग के लिए कि आप क्योंकि हमारे कहने पे शिफ्ट हमारे करें, कर रहे तो हम आपको फैसिलिटेट भी कर देंगे। बट इनको वो जो ब्रिक क्लीन वाले बेचारे हैं उनसे मसला है। अब ये वाले जो है ना, अब मेरा सवाल, हाँ इसमें भी सवाल है। एक तो मेरा है कि कितना, आई डोंट फॉर अ सेकंड बिलीव कि ये सारा कुछ इंडिया की बर्निंग, सॉरी फॉर ऑल बोथ ऑफ यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस, पॉसिबली कांट बी सिर्फ इंडिया की से जो हवा आ रही है वहाँ जो बर्निंग हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। बट हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इज दैट? तो इट इज वेरी इजी टू वेरीफाई योर क्लेम। Put monitors at strategically placed distances from the border. You'll get an answer to this question. कि कहाँ से कितनी emissions आ रही है? हम कहते हैं, हमारी करंट गवर्नमेंट कहती है कि जी हम इंगेज करेंगे दिल्ली की गवर्नमेंट से टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। किस बेसिस पे इंगेज करोगे? यू गोइंग टू go and tell them कि you are the problem? They go to say no, we are not, and you have nothing to counter them with. क्या कहोगे आगे से? इंडिया से वैसे ही बड़ी अच्छी रिलेशन है ना कि अगर किसी पे इल्जाम लगाना है, अगर कोई इल्जाम लगाना बनता है 100% you should do that. I will never suggest for a second, no reasonable person would suggest for a second that if India is to blame, you don't do anything about it. But you have to first convince someone that India is to blame. अगर आपके पास वो डेटा ही नहीं है जो आप जब आप गवर्नमेंट से कहते हो, आप क्यों ये क्लेम करते हो नासा का सैटेलाइट डेटा विंड पैटर्न्स, ये विंड पैटर्न्स तो फिर बाय एंड लार्ज तो वेस्टर्नली विंड्स होती हैं विंटर मंथ्स में। अगर 2-3 दिन आपने देख भी ली हवा इस तरफ चलने वाली, तो दैट कांट बी द प्रॉब्लम। एंड अगेन नासा का डेटा इज नॉट टारगेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज जेनेरिक, राइट? दैट इज available for every region in every city anywhere in the world. You have to come up with your own data which is specific to your particular districts. But I'm guessing that's not being done on purpose. Because वो फिर ताकि we can blame India. ये argument नहीं फिर कर सकेंगे ना. Because I said you would have to accept the mistake. That we are at fault. चलिए अगर ये मान भी ले कि 30% इंडिया कर रही है, तो 70% जो हमारी तरफ से हो रहा है उसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है? और इसको जो है प्रॉपर हमारी जो है इस टाइम पे क्या हो रहा है, अभी इन्होंने ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल्स बंद कर दिए, ये कर दिया, एजुकेशन भी जाया। पर क्या ये इसके लिए कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम साल 12 महीना इस पे काम करें? क्योंकि स्मोक तो पूरा साल होता है। अब मेरा ये सवाल है, ब्रिंगिंग दैट अप, वो जो अर्बन यूनिट की स्टडी की मैं बात कर रहा था ना, एमिशंस इन्वेंटरी ऑफ लाहौर की,
वो स्टडी दो चीज़ें, कभी कभी ना ये शायद गलती से हो जाती हैं या कोई वेल मीनिंग पर्सन होता है इनके बिहाइंड दीज थिंग्स, दो चीज़ें आइडेंटिफाई करती है। एक तो ये कि हमने जो AQI के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ना, जिस पे हम कहते हैं कि ये गुड है, ये bad है, पुअर है, ये हैजर्डस है, वो WHO से बहुत लूज है। जैसा WHO कहता है कि गुड इज अप टू 15 AQI, ठीक है, हम कहते हैं गुड इज अप टू 50 AQI। वो अर्बन यूनिट की स्टडी कहती है कि अगर हम WHO का AQI क्लासिफिकेशन फॉलो करें ना, तो बिटवीन जनवरी 2019 एंड अगस्त 2024 दिस वर्क्स आउट टू 2070 days. We've only had 28 good days in Lahore. And you know when they were? COVID lockdowns. That's the last time we had good days in this city as Those are per sunny WHO days. standards. So it is not an issue which starts in November and ends in January. In January. It's a year-round It just issue. aesthetically is more visible Exactly. Exactly. Okay, also can you repeat what you said when the cameras were off Yeah. about the low, upper, niche, the So way? basically, the reason why certain months are bad like something like that. is not Living at shit, I remember. is not. That I remember. कोई बात नहीं। तो मुझे भी ये बात किसी से समझ नहीं पड़ी थी और पहले मैं भी उसकी शक्ल ही देख रहा था कि ये क्या बातें कर रहे हो। So what? Given that it's a year-round problem, why is it worse in certain months? फॉर एग्जाम्पल क्रॉप बर्निंग तो हमारे मार्च से मई के साइकिल में भी होती है, जब हम दोबारा अपनी रीसो कर रहे होते हैं नेक्स्ट सीजन क्रॉप, तो वो तो क्रॉप बर्निंग तो हम तब दोबारा करते हैं, तब क्यों इतनी बड़ा इशू नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज इन्वर्जन। यूजुअली ये है कि आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स के दरम्यान में प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं। हायर प्रेशर लेयर्स नीचे होती हैं, लोअर प्रेशर लेयर्स ऊपर होती हैं, एंड एयर और पोल्यूशन परमिएट्स फ्रॉम हाई प्रेशर इनटू लो प्रेशर एरियाज, व्हिच मींस कि जितनी भी पोल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं वो लिटरली वैक्यूम अप कर लेती है लोअर प्रेशर लेयर एंड इट लीव्स योर इमीडिएट लाइन ऑफ साइट एंड यू कांट सी इट एनीमोर। जिसकी वजह से AQI भी कम ही होता है उन महीनों में। इन विंटर मंथ्स something known as inversion happens, जहाँ पे आपकी लो प्रेशर लेयर नीचे आ जाती है, हाई प्रेशर लेयर ऊपर आ जाती है। अब लो प्रेशर से हाई प्रेशर में तो कुछ नहीं जाने वाला। सो यही जो पहले परमिएट हो रही थी आपकी पोल्यूशन और सक आउट हो रही थी इनटू द एटमॉस्फेयर, इमेजिन दैट देयर इज नाउ अ ग्लास रूफ And you're trapped in it. and every single bit of air pollution that you're generating no longer has anywhere to go, and it's going to just remain where you're generating it. Why is Lahore worse than Multan, which is different from Bahawalpur, which is different from Gujranwala? Because each city is swimming in their own pollution. Living in our own shit. As close as Yeah. it gets, that phrase. Yeah. You know, I saw this clip of yours. There was this lecture you were giving, and you were talking about हमारी वाटर में कितना आर्सेनिक है, और वो नॉर्मल पानी भी लिमिट से आई थिंक इज 20 times or something Yeah, more. it's 20 times what the WHO prescribes. No, our drinking water quality standards allow arsenic in our water, and the permissible limit is 20 times higher. Higher, than like what even a the limit is on a हम तो लिमिट ही ऐसी रखते हैं कि मसला ही कोई ना और हो। फिर भी हम उसको मीट नहीं नहीं करते। करते। That's the best part. Actually, no, that's not the best part. That's the most depressing. The first sign of addicts को नहीं कहते. The first sign of fixing yourself is admitting that you have a problem. That's our problem. That's our government's problem. Admit ही नहीं करना कि कोई Admit मसला नहीं है, क्योंकि admit कर लिया तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके ऊपर. One of the things that I believe unfortunately gets left out of these conversations is, so what do we do? Exactly. Yeah. Activism करते हैं ना हम हर दूसरे इशू के ऊपर, political issues के ऊपर, financial issues के ऊपर, whatever. We find 20 things to group and complain about. ठीक है? जब private schools ने fees increase करनी शुरू की, what would have been the right way to go about it?
making sure that our government schools are of the caliber that we don't need private schools Exactly. anymore. Because education is a fundamental right. No one had that conversation. The courts jumped in on जी फीसें regulate करेंगे, सब कुछ करेंगे. Fair enough. आपको लगा ये मुनासिब चीज है, but is that a solution to the No, it's problem? not a solution. I The agree with education you. crisis won't be resolved by private schools. It will be resolved by public schools. Yeah. यहाँ पे हम यहाँ पे इसके लिए क्यों नहीं आप ग्रुप टुगेदर कर सकते? इसके लिए आपकी अर्बन एलीट क्यों नहीं इकट्ठी आके उसी तरह एडवोकेट करती जिस तरह वो बाकी इश्यूज के लिए करती है? हर मिनिस्टर से जाके लोग मिलने को तैयार थे, तब जजेस से जाके अनफॉर्चुनेटली मिलने को तैयार थे, जिन जजेस के सामने ये मामलात लगे हुए थे. इस पे क्यों नहीं करते आप ये सब कुछ? यहाँ पे पिछले 6-7 साल से मुझे पता है अब कि कोशिश की जा रही है बाय अ फ्यू पेरेंट्स टू स्टार्ट ए कारपूलिंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन. कोई इस बात पे ही मानने को नहीं मेरा बच्चा किसी और की गाड़ी में क्यों जाए. जस्ट लाइक अब ये कर ले, स्कूल बसेस मैंडेटरी कर दें स्कूलों के अंदर कि आज ज्यादातर बच्चों ने स्कूल बसेस पे जाना है, स्कूल बसेस उसको दें. भाई जिसने मैंडेटरी करना है, जब वो ही नहीं अपने बच्चे को स्कूल बस पे भेजना चाहता, बोलो वो तो लीगल करना, अगर फीसेस रेगुलेट करें इस पे फिर जरा थोड़ा ठंडा दें. यही आई मीन हाँ मतलब दैट्स दे आर नॉट डूइंग इट, बट आई फील दिस इज स्टिल अ डूएबल, लाइक फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि these are doable things that can be done. It's not like we have to spend billions. बात करनी है ना, तो एक छोटा सा पैच ऑफ रोड है जो आप और मैं रोज लेते होंगे, मेजॉरिटी लेती है, इसीलिए अगला फैक्ट उस रोड के बारे में एग्जिस्ट करता है. कलमा चौक से जो डिफेंस के लिए वॉल्टन से लेफ्ट टर्न करने तक का पैच है, इट्स व्हाट 2.83 kilometers of road. Over the last 7 years, we've spent around 11 billion rupees on this patch of road alone. Just this patch of the road. Well, just imagine what that 11 billion could have done if you wanted to put an effective public transport mechanism in place. जब आप गवर्नमेंट को कहते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करें, क्या कहते हैं कि जी फंड्स नहीं है. भाई इन चीजों के लिए तो फंड्स हैं आपके नहीं, बट पास. बनाने में तो फंड है. मेट्रो तो बनाई है, मतलब उसको उसकी यूटिलाइजेशन के लिए आई गेस इज नॉट, बट ट्रेन ट्रेन तो बनाई है. उन खास एरियाज में नहीं जाती ना, जैसे डिफेंस के बहुत सारे इलाके हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, there is no कैंट में नहीं है. that's true. सिर्फ गाजी रोड के ऊपर चलती है. सिर्फ गाजी रोड पे जाती है. उसके अलावा बिकॉज़ आई थिंक मेंटालिटी फॉर देम इज कि यार वो क्लास तो ये नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे. तो वो जो है एक तो ये, दूसरा जो है जो चीज़ मुझे लगता है जो प्रॉब्लमेटिक है कि ये लोग हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये समझ नहीं आती कि जो हम अभी ये वॉल्टन वाला हमारा रोड है 1.5 साल से बन रहा है. 1.5 साल से उसकी The amount of dust that area is generated. आपको अभी जैसे हम गुजरे हैं right ये next to इसका it. कोई फायदा नहीं हुआ इसको बनाने का, जो ओवरहेड बनाया है नो यूज. कोई ट्रैफिक जरूरत बिल्कुल नहीं थी, कोई वही ट्रैफिक रहती है. Oh, that's because signal-free corridors aren't designed for cities like ours. वो सिग्नल फ्री बना दी है. 2015 में मैंने पिटीशन की थी ये कहने के लिए, जब ये जेल रोड को सिग्नल फ्री कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, इसको कोई फायदा नहीं होना किसी को भी. इधर मुझे समझ नहीं, ये डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, आर दे सोली बेस्ड टू गेट वोट्स? बट देखिए एग्जैक्टली इट इज एज डम एज दैट देन. तो रोड्स भी sometimes it इसीलिए feels बनाए like that गए is थे. exactly how dumb it is. Because like I would like to believe that there's some, you know, at some level there is some research being done before these things. No, nothing is being done before this. Even हमारे जो अभी जब फहद बात कर रहा था कि अगर यही जो पेशेंट्स के ऊपर जो अमाउंट ऑफ फंड्स लगते हैं उनको हैंडल करने में स्मोक के दिनों में जो रिस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और बहुत सारे जो सीनियर और बच्चों में जो बीमारियां होती हैं उसके फंड्स जो है अगर वो उसको यूटिलाइज कर ले इस प्रॉपर स्मोक के और जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशंस हैं उन्हीं चीज़ों में, बट हमारे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें इतने फंड्स है ही नहीं पहले से. डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड है, नर्सें ओवरवर्क्ड है, बेड्स नहीं है हमारे पास, और स्पेशली इन दिनों में तो इमरजेंसीज बढ़ जाती है पेशेंट से, ओपीडीज पेशेंट से बढ़ जाते हैं, और वही टोटल 2 से 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने 36 घंटे की ड्यूटियाँ की होती है, 24 आवर्स की होती है, 12 घंटे की इमरजेंसी करके उसके बाद बैठे होते हैं 8 घंटे और जो है ओपीडी करने के लिए. तो वो उस पूरे सिनेरियो में जो खुद ऑलरेडी एक टायर्ड डॉक्टर है जिसने इतना लंबा काम किया, उसकी डायग्नोसिस क्या सही हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड है. हमारे जो पेशेंट्स को मैनेज करने का जो पूरा सिस्टम है हॉस्पिटल्स में वो नहीं सही है.
हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। और ज़्यादातर इस बीमारियों से इफ़ेक्ट भी एक ख़ास तबका ही होता है, जिनके घरों में ना एयर प्योरीफायर है, जिन्होंने वैसे ही ट्रैवल करना होता है, और वो उन्हीं के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में आते हैं, सरकारी अस्पतालों में आते हैं। तो वो जो एक ख़ास तबका है, उनको कोई ना मराद दी जाती है ना, और इनका पानी जहरीला है, इनके इलाकों में जो है गंदगी ज़्यादा होती है, इनके बच्चों को जो है सिस्टमेटिक स्केबीज़ और लेड पॉइजनिंग से लेके हर तरह की बीमारियां इनके बच्चों में होती है। एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट की गई थी कि वर्किंग क्लास नेबरहुड के जो ख़वातीन हैं वो हाईली जो है ज़्यादा उसमें होता है, उनके मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और दिसंबर, नवंबर, जनवरी के दिनों में ये जो केसेस होते हैं ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो सारा हेल्थ क्राइसिस जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आता है। बट हमारे मुल्क में हेल्थ और क्लाइमेट को जो है ऐसे पैरेलल लेके नहीं करते, सेकेंडरी समझा जाता है। अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, पहले हमें डेवलप तो करने दें। आपकी डेवलपमेंट नहीं आपको इन प्रॉब्लम्स में फंसा दी है ना, आप डेवलपमेंट ही गलत कर रहे हो, इसका मतलब है। हमारे मुल्क में फहद प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं। हमारे मुल्क में ना सेहत पे बहुत काम होगा, ना एजुकेशन पे होगा, ना तालीम पे होगा, ना ख़वातीन के राइट्स की प्रोटेक्शन पे होगा, ना चाइल्ड राइट्स पे बात होगी, ना लेबर राइट्स पे बात होगी, ना कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी, ना जस्टिस पे बात होगी। जिन चीज़ों पे हमारे मुल्क में बात होगी वो हम सबको पता है, मैं बात नहीं कर सकती उसके बारे में। उस पे बात वो भी नहीं करते, बस हो जाता है। मैं नहीं कर सकती। वो भी नहीं करते, वो कहते हैं इट इज बात क्यों करनी है? इट इज व्हाट इट इज। सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती है, मेरी जिंद मेरी जान, दिल पाकिस्तान। मेरी जिंद मेरी जान, वो वाली जो एक नहीं, इस पे बीप लगा, इस पे बीप वो निकाल लेंगे वैसे, शायद हो गया, हम ये भी ले लेंगे, वो एक फर्क बात है। आई थिंक हमें ना EPD को भी छोड़ के, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट को छोड़ के, चीफ मिनिस्टर को छोड़ के हमें एक ही जगह अपना खत लिख लेना चाहिए। आप नहीं बैठना चाहती हैं आज रात है? मुझे लग रहा है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और आई थिंक सारे मसले का हल निकल आता है यार। वो चावल बना सकते हैं, सब कुछ तो कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी, सब कुछ, ये भी कर ले, प्यूरिफायर भी शायद, यू नेवर नो। आई थिंक ये थोड़ा सस्ते में हमें दे दे। कैमोफ्लेज मास्क, लाइक ब्रांडिंग टेस्ट है, आई थिंक ये अच्छा है अभी भी आपको। हाँ, ट्रेडमार्क नहीं होगा ना, ट्रेडमार्क तो प्योर थिंग है, इट्स ऑलवेज गार्ड प्यूरिफायर। But so is I'm guessing, okay, so I want to be more hopeful. Is there any, like, I'm guessing there's no good news here. Like there's nothing, because the government clearly is not ready to do anything, and clearly इस अभी near future में तो कुछ नहीं कर सकेंगे अगर कुछ हो भी जाए। Well, the good news is, अगर जबरदस्ती सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है, Sure, थोड़ी सी, तो लंदन को किस तरह एहसास हुआ था कि हमें अपनी एयर क्वालिटी फिक्स करनी है? Something called the Great London Smog happened, which ended up killing thousands of people over a 1-week period. I mean, that's my good news. that is a lining. That's a Red silver lining. We're getting there. We're getting there. We are very close to और that. शायद फिर हमें भी मजबूरन ही करना पड़ जाए किसी दिन। और ये क्या हुआ था जो great, it's like, it's just, it was just highly, the city choked its residents to death because they did not realize that the problem needed a fix. आप सब कुछ छोड़ो, go back 4, 5, 6 years. मतलब जब भी ये स्मॉग आनी शुरू होती थी ना, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट बनती थी कि look at how beautiful it is. We used to romanticize this at one point. Finally, we are at a point where we've stopped. अगर कोई आप ये पूछना चाहते हैं कि solution क्या है, very simple 5-6 steps जो अगले 15-20 साल में नहीं लेने, वो हमें आज से 5 साल पहले ले लेने चाहिए थे, बट अभी भी ले ले तो शायद कुछ हो जाए। 1. Get your own data sets. Do your source apportionment study. If you believe India is at fault, come up with data to substantiate it. Exactly. Any solution which is not based on science will never be successful. Science requires data collection first and foremost. Get your data in order, number 1. Once you have the data before you, you let the data take you in whatever direction it does without caring what the consequence of following the data would be. If the data says
restrict private vehicular usage, you restrict private vehicular usage. If data suggests that target farmers, you target farmers. If data suggests you target industries, you target industries. In any event, fuel qualities in this country need improvement. We need higher standards for the fuel that we are using. Again, urban unit already कह रहा है कि 83% in Lahore and 39% across Punjab is from the transport sector. Transport sector की emissions किस चीज़ की होती हैं? पेट्रोल और डीजल की. Quality improve करें उनकी. Revise your emission standards. Come up with better emission standards for motor vehicles. Come up with better. I have a question on the standards fuel for quality. Industry. हाँ जी. The fuel quality, is it कि सिर्फ पाकिस्तान की fuel quality बुरी है, और is this like fuel हमारी like पूरी दुनिया में फ्यूल क्वालिटी के लिए यूरो स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. हर कंट्री मैंडेट करती है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में कौन सा यूरो क्वालिटी फ्यूल परमिट किया जाएगा. वी legally still say कि as long as your fuel is Euro 2 compliant, Yeah. it's okay. And it's because it's cheaper, I'm guessing. It's cheaper to source. The problem is it would inherently lead to higher emissions. Europe, on the other hand, is now on Euro 5B standards. ठीक है कि वो 5 के अंदर भी रिविजन्स कर करके 5B पे पहुंच गए हैं. हम अभी तक लीगली Euro 2 मैंडेट करते हैं. Ostensibly, most petrol stations here in Punjab are selling Euro 4. But even then, Euro 4 is still not the current global standard. आप हर चीज़ में ये बहस निकाल सकते हो शायद कि भाई हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें ऑब्लिगेट ना करें डेवलप कंट्रीज़ को मैच करना. बट अगर आपकी लिटरल existence of a significant proportion of your population is under threat, you lose the right to give that response. So you have to fix your fuel quality, and you have to let data take you wherever it takes you, and not be afraid of it. Don't be scared of facts. Facts are facts. They don't care what you feel about them. Let data take you wherever the natural conclusion of that data is. That is the only solution. बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स भी बहुत अच्छे हाई क्वालिटी डेटास निकाल रहे हैं और उनके वो क्या कह रहे हैं डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी है? व्हाट इज दैट? बट दे आर नॉट. ये मैं बात करना चाह रही हूँ कि अगर सोल्यूशन की तरफ जाए तो जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जो कर रहे हैं रादर देन के आपके अपने गवर्नमेंट इनिशिएटेड जो डेटास हैं जो रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से इतने सालों से कोई सोल्यूशन नहीं डेवलप हुआ, तो आप नए लोगों को ऑन बोर्ड ले लें, नए लोगों से आप ये सारा कुछ काम करवाएं ताकि एटलीस्ट कोई FIA को चिट्ठियां लिखें कि इनके खिलाफ साइबर क्राइम प्रोसीडिंग्स करें. तो ये जो प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों पे काउंटर कर सके. और अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ कंडीशंस हो रही है तो उसको कैसे काउंटर करें. इनको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हेल्थ क्राइसिस इज़ क्लाइमेट क्राइसिस एंड क्लाइमेट क्राइसिस इज़ ह्यूमन क्राइसिस. तो हमें ये सारी चीज़ों को आई थिंक मुझे लगता है कि इनको मद्देनज़र रखनी चाहिए. सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में स्मोक पे काम करने की बजाय सारा साल स्मोक को मॉनिटर करके उस पर प्रॉपर पॉलिसीज, जैसे फहद देखा है कि सच से ना डरे ना. हमारा मसला ही यही है, नेशन के फैक्ट्स को हम हमेशा डिनाई करके जो है काम हम उस पे काम हम ऑल्टरनेट फैक्ट्स में बिलीव करते हैं ना. ट्रम्प पीरा ऑल्टरनेट फैक्ट्स कैन बी उसका हमारे पास जुगाड़ होता है हर चीज का. माइंडसेट एक छोड़ा हुआ है ना. पेट्रियार्की ने, कैपिटलिज्म ने, कॉलोनियलिज्म ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है हमारा. हम फंक्शन ही एक पर्टिकुलर तरीके से करते हैं. ठीक है. इन अ डेमोक्रेटिक नेशन व्हाट इट्स individual population has to say takes priority. But if you're still governing your cities on a colonial system of bureaucracy, they don't care what the individual resident of the area has to say. They care whether the state's imperatives are being protected, as if state का imperative अपने residents के अलावा कुछ और हो भी सकता है.
even conceptually in a democracy. But हम अभी भी कहते हैं कि state की protection is number one. No, population की protection is number one. The state's duty and job is to protect its population, not the other way around. हम अभी भी लेकिन वही कॉलोनियल सिस्टम के अंदर उसी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ गवर्नेंस चलाते हैं. यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात करो, आपको कहेंगे जी हम इन जाहिलों के हवाले कर दें. ठीक है, आपने अगर ये ओपिनियन उनके बारे में रखना है, ये आपकी मेंटालिटी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है रादर देन द मेंटालिटी ऑफ योर जनरल पॉपुलेशन. बट हैविंग सेड दैट, आपका एक डीएमजी अफसर जो आज आप कहते हो कि भाई वो लाहौर का असिस्टेंट कमिश्नर है, वो लाहौर को एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाएगा, कल आप कहते हो कि भाई ये इसको ना हम ईपीए का हेड लगा देते हैं. उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ है ईपीए का हेड लगने की? Where does that person's qualification? डीएमजी अफसर की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक चला रही हो, जिसको एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर क्या नाम लेते हैं इसको, टेक्निकल डिसीजंस लेनी है. हाउ कैन दैट पर्सन रन इट? आप कल उसी बंदे को उठा के लगा दोगे, किसी केन कमिश्नर लगा दोगे कि जी बैठ के आप फैसला करो कि शुगर केन की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए. मतलब हम समझते हैं कि उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ कर सकते हैं. मजे की बात, हमारे कानून इजाजत भी देते हैं इन हरकतों की. हमारा ईपीए का लॉ कहता है, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि बाय द वे all our provincial environmental laws in principle create the most powerful regulator for their respective provinces. Statutorily EPA से ज्यादा पावरफुल रेगुलेटर नहीं है पंजाब में. EPA किसी को कुछ भी करने से किसी भी वक्त रोक सकता है. वाहिद इदारा है जिसके पास इतनी वास्ट पावर्स हैं लीगली स्पीकिंग. बट करते क्या है हम कि हम वहाँ पे एक डीएमजी के ऑफिसर को हेड लगा देंगे. उसका आपने हेड किसको लगाना है? या ब्यूरोक्रेट को लगा दो, या समवन हु हैज अ पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंसेज. कि आपने इक्विवेलेंट रख दिया एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को टू ए पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंसेज. ठीक है, किसी टेक्निकल बंदे को हेड लगाओ who knows what they are talking about, जिनका ये एजेंडा नहीं है कि यहाँ पे मैं 4 अफसरों को खुश करके कल को एक बेहतर पोस्टिंग दूंगा. ईपीए का जो डीजी लगता है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी उसमें समझा जाता है खुडे लाइन पोस्ट दे दी है. Your most powerful regulator's head is considered as a खुडे लाइन post in our province. But you know, as Ali also said कि more than inefficiency, this seems like they are doing this on purpose के आगे फंडिंग ले आए, ये कर लिया, इंडिया पे ब्लेम डाल दिया because they don't want to accept the mistake. अब क्वालिफिकेशन बड़ी अहम है जिस पोस्ट को आप जिसको देते हो. जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जरताज गुल का, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? मतलब उसने भी कहा था ना, उसने तो उसको भी वो किया था डिबेट को, जो यही मीटर से उसने कहा ये गलत बताते हैं. इट्स अ वेरी फेमस इंटरव्यू. आई थिंक दुनिया पे किसने उस बंदे ने कहा कैसे कह सकती है ये मीटर कैसे खराब है, कौन सा सही है? फिर हो सकता है मैं ये भी मानने को तैयार हूँ. प्रूव करो ना. प्रूव करो, वो भी प्रूव करे ना. जिन लोगों की वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होती उस प्रॉपर सीट पे जाके बैठ के उस चीज को रेगुलेट करने की, हम जो है उन लोगों को, हर किसी को गलत पोस्ट पे बिठाया जाता है. हर जिस जॉब की सेंस नहीं होती, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. ऑल्दो जो टेक्निकल काम होता है वो जिसका काम उसी को साजे वाला काम सिस्टम है. जिसका काम एनवायरनमेंट का है आप उनको एनवायरनमेंट की पोस्ट दो. एटलीस्ट जो इसकी जो अहम जो नुकात है, जो काम है, उसको टेक्निकलिटीज है उसको अंडरस्टैंड तो करे, क्योंकि जो इसको अंडरस्टैंड करेगा वही उसके सॉल्यूशंस भी ड्राइव कर सकता है, वही उस पे प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस लगा के उस चीज़ को काम उसको बेहतर भी कर सकता है. बट यहाँ पे वो सारा उल्टा है कि जिस तरह से वो एक एग्जांपल मुझे याद आई कि ख़वातीन के लिए वुमेंस डे पे को सेलिब्रेट करने के लिए 10 मर्द स्टेज पे खड़े और कहेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मुबारक हो आप सबको ना. ये भी इसी तरह का is a famous जमाते इस्लामी कन्वेंशन. I know it about. आ गई है. तो ये इसी तरह का एक एग्जांपल है ना कि आप जो काम आपका है ही नहीं, आप जो चीज आपका नहीं है वो कर दो. So what I'm hearing is हमारा fuel is second hand. Our policies are not data driven. We don't have data. We don't even have the source to even identify the problem. Yes.
and there are no independent organizations जो NGOs या कोई जो डेटा ले रही हैं या उन पे वो लगा देते हैं, उनको डिनाई कर देते हैं. तो झूठ बोल रहे हैं ना, वो तो मुल्क का नाम है. But are there NGOs who are working on gathering this data and yes, there Yes, are a there few. are. I wouldn't call them NGOs. okay. There are private sector players that are gathering the data, that are analyzing that data and are putting out, policy papers based on the data collected and analyzed by them. Davar Numan Bhatt is someone who comes to mind. Rafe Alam comes to mind. Sara Hayat comes to mind. Okay. LUMS mein they've just started an environmental department, and there are a couple of Sana Khosa and a couple of other people over there who are doing very good analysis of available data to come up with policy proposals. But ye matlab, again, it's a handful of people. मैं अगर आप 5 मिनट बैठ के और सोचूं तो शायद मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दूं कि कौन कर रहा है यहाँ पे ये काम. अगेन, ये काम हमारे गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी इदारों के होते हैं करने वाले. इनकी सपोर्ट में ये लोग आते हैं, एकेडमिक्स आते हैं, इनकी सपोर्ट में डेव सेक्टर के लोग आते हैं. वो लीड नहीं कर सकते Exactly. because they don't have the amount of access required to lead any meaningful change. So private sector में लोग, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ पूरी, उनका impact none, because no one wants to listen to them. Okay, my last question to both of you is from all this I'm hearing, what can an individual do? Like from an individual level, sure, government level pe things are bad and whatnot. From an individual level, what can one do? Or is it that bleak that you really can't Organize, do much? vocalize. I think जो सबसे अहम चीज़ यही है कि जब तक आप इसको क्राइसिस नहीं समझोगे, तब तक जो है आपके मसले हल नहीं होंगे. जब अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाओ, इकट्ठे हो जाओ और इस क्राइसिस को उसी तरह से समझो कि आपका प्राइम मिनिस्टर जेल में है. बिल्कुल, और आपका स्लो किलिंग हो रही है. अपने राइट के लिए उठो, अपने जीने के लिए उठो, सांस लेने के लिए उठो, क्योंकि इस टाइम हम सांस नहीं ले सकते. हम जो इनहेल कर रहे हैं वो सारे टॉक्सिन्स हैं. और डेविड लुइस के लिए भी लेटर लिखते हैं तो इस पे भी लोग उठ जाएं. बिल्कुल, इस पे लोगों को उठना चाहिए. ये आई थिंक हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज से ज्यादा अहम मसला है इस टाइम. मतलब इट्स इन फ्रंट ऑफ अस. जब हम सांस नहीं ले सकते फिर हम कुछ नहीं कर सकते. Also, we need to stop looking at it as a Lahore problem. It's not a Lahore problem. Peshawar की figures देखी हैं आपने AQI की? It's this whole belt actually that starts somewhere around Delhi and extends all the way to Kabul. Yes. ये पूरी belt है which goes through this every year. We need to stop looking at it as a Lahori issue. We need to start looking at it as not just a provincial or a federal but an international issue between us and 2 of our neighbors. मसला ये उन 2 neighbors के साथ इतने और मसाइल हैं कि एक गुड फेथ सिटिंग उनके साथ हो ही नहीं सकती. जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते, उतने तो मिटिगेशन मेजर्स और अडेप्टेशन मेजर्स लो ना जो आप कर सकते हो. आपके कंट्रोल में फ्यूल क्वालिटी आपके कंट्रोल में है. प्रायोरिटाइजिंग योर प्रोविंशियल government expenditure for mitigation and adaptation measures is more important than, let's say, ब्यूटिफिकेशन एक्सरसाइज जो पूरी माल रोड, केनाल रोड और सबकी की हुई है, जनरेटर्स चला के आप बत्तियां लगा रहे हो. स्पेंट अराउंड $1 billion over the past 8 months on this. Why? ये किसको फायदा दे रही है? एक आपके सामने एक एग्जिस्टेंशियल इशू है आपकी लोकेलिटीज के लिए. स्पेंड that $1 billion on measures related to that. आप कोई एनालिसिस करो कि आपके मोबिलिटी पैटर्न क्या आपके शहर के अंदर, एंड यू इंट्रोड्यूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स व्हिच कंफर्म टू दोज मोबिलिटी पैटर्न्स. यू डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर प्राइवेट कार्स. पेरिस, बीजिंग, हांगकांग, लंदन, कंजेशन चार्जेस हैं. आपने बड़ी गाड़ी खरीदनी है, हक है आपका, एक्स्ट्रा पैसे दो उसको शहर के अंदर लाने के लिए. Zone 1 के अंदर I believe it's now £7.5
that whenever you take your car, you're taking your car in zone 1 of London, you have to pay a congestion charge if it's not an electric vehicle, or if it's not, if it's a hybrid vehicle, it's different. If it's a diesel vehicle, it's quite significant. So depending upon what sort of vehicle you have, you should be paying. एक प्रिंसिपल हम हमेशा एनवायरनमेंट में सुनते रहे हैं ना, पोल्यूटर पेज. आपको कोई मना नहीं कर रहा कि अगर आपने एक ग्रैंड लाइफ जीनी है, बिल्कुल जियो, पे फॉर इट देन ना. There's a carbon tax in Canada, but it's being debated. But yeah, आज भी गाड़ी इस तरह रजिस्टर करते हैं कि कितने सीसी की गाड़ी है. We don't care उसमें emissions कितने निकलते हैं. Nobody cares for sure. Your car Nobody has ever, yeah. directly related to what emissions your car is actually making. Yeah, like I've never had this conversation anyway. Okay, emissions, nobody will ever. Nobody will talk about it. Because हम दो लोगों को blame करके खुश रहते हैं ना. You know, because before this discussion, I very much also thought यार कि ये जो मोटरसाइकिल जो काला धुआं या ये होता है, ये ज्यादा हार्मफुल है. ये जो मॉडर्न इंजन है, ये तो बेहतर होंगे. But that's not the case. नहीं, क्योंकि उसमें पहली चीज ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हमारे पास मॉडर्न इंजन नहीं है. हमारे पास वो इंजन है जो बाकी दुनिया ने बहुत पहले बंद करा दिया. हमने अभी तक हमने अब उनको अडॉप्ट किए, तो वो हमारे लिए मॉडर्न है, लेकिन ग्लोबली वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं. वो याद है, वो स्टार वर्ल्ड पे ना शो आता था, जब भी वहाँ मशहूर हो चुका होता था, 2-3 सालों बाद ना स्टार वर्ल्ड को राइट्स मिलते थे इधर आने के. प्रिज्म ब्रेक और लॉस्ट साल लेट देखा था. Give you an actual example of what we are doing, which has become obsolete. चाइना ने फैसला कर लिया है कि हम अब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज उनका एनवायरमेंटल डैमेज इतना है कि कोई भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दे विल नेवर कम आउट ऑन टॉप. हमने लगाने शुरू कर दिए. जब उन्होंने कहा ना कि नहीं अब बस, हमने कहा अब हम कोल की तरफ ट्रांजिशन करेंगे. The world has realized that that's not how you can sustainably generate electricity. And at the end of the day, भाई अब तो जैसी भी, जिस तरह भी आई, जैसी भी आई, और जो भी किया 26th Amendment ने, अब तो मेरा राइट है भाई, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. नाउ द गवर्नमेंट हैज नो एक्सक्यूज टू नॉट गिव मी दैट. मैंने द लास्ट वर्ड में, ये आखिरी बात मैं करूँगा, 2018 में एक टॉक दी थी जिससे मैंने कहा था सारे ना मास्क पहन के बाहर निकलना शुरू कर दो, खुद ही शर्मिंदगी हो जाएगी. एंड समवन देन गॉट इन टच विद मी लेटर कि आप मुल्क को बदनाम क्यों कराना चाहते हैं. ठीक है, हम मुल्क की बदनामी को अपनी पॉपुलेशन की सर्वाइवल से ऊपर रखते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं हमारी, कि हम एक्चुअल फैक्ट को रिकग्नाइज करके उसको टारगेटेड सोल्यूशन नहीं देना चाहते. At an individual level, what we should be doing is, smog एक ऐसा इशू है which does not discriminate. अगर एक अमीर ने भी बाहर निकलना है तो उसने स्मॉग में निकलना है, गरीब ने भी बाहर निकलना है स्मॉग में निकलना है. फर्क ये, अमीर मास्क शायद खरीद के पहन सके. बट for anyone interested in knowing, you asked me this question earlier about the simple वाले, ये 10 रुपए वाला मास्क. It is up to 60% effective. It is definitely better than nothing. ठीक है, उतना तो अब हर कोई पहन लेता है. चले, एक पॉजिटिव एक तरह से है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन मैंने देखा है, मैंडेट कर दिया कि अब पब्लिक स्पेस में सारे मास्क पहनेंगे जिस तरह कोविड में मैंडेट किया था. सो दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बट क्योंकि ये इशू डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, a lot of people have gotten in touch with activists on air quality like I am recently, who belong to the upper classes of our city. के हम क्या करें. मैं सबको कहता हूँ भाई, फलाना मिनिस्टर आपका दोस्त है, जाए बात करें उनसे. फलाना आपका कजन है, जाए बात करें उनसे. Get your government to act. Take away options of saying no from them. That's what we all should be doing at an individual level. Anyone that we know in the corridors of power, tell them that there is no bigger issue. No guys, thank you so much for this depressing but informative talk. But no, it's important. Basically अब मर रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन बात ये है अब क्या कर सकते हैं. मौत को खूबसूरत बनाना मुश्किल होता है. मौत को वो इंस्टाग्राम पे फिर भी लोग बना रहे हैं इतनी खूबसूरत. 4-6 फिल्टर लग जाएंगे उसके साथ. No guys, thank you. This was though very informative for sure. Thank you. Thank you for having us.